اس لیے کہ انڈیا میں حالانکہ انڈیا ایک اس کی پالیسیز ہمیں اچھی نہیں لگتی ہیں، مودی کے زمانے میں خاص طور پر ہمیں یہ بات بری لگتی ہے کہ وہ اب وہاں مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور جب بھی مجھے موقع ملتا تو میں اس پر خوب آواز اٹھاتا ہوں. مگر یہ ماننا پڑے گا کہ ادھر جو تعلیم ہے ان کے اسکولوں کی، ادھر وہ لوگ جو ہیں وید کو یا اپنی کسی آسمانی کتاب کو، اپنی کسی مقدس کتاب کو ایسے سر دھن کر ایسے نہیں پڑھ رہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بچوں کو حساب سکھاتے ہیں، سائنس سکھاتے ہیں. ہر شہر میں 10 سائنس میوزیمز ہیں. ادھر آپ جائیں تو ہر طرف آپ کو سائنس ہی سائنس کی بات سنائی دیتی ہے. اور وہ اس لیے کہ ابتدا ہی میں جواہر لال نہرو جو ان کا پہلا پردھان منتری تھا، وزیر اعظم، اس نے ایک لفظ ڈلوایا انڈیا کے آئین میں. لفظ نہیں، فقرہ ہے، سائنٹیفک ٹیمپر، کہ آگے بڑھنے کا رستہ سائنس کا ہے. بنا سائنس کے انڈیا غربت سے نہیں نکل سکتا، ترقی نہیں پا سکے گا. اور وہ ایک کلچر ان کے کلچر کا حصہ بن گیا. مودی اب اس کا کریڈٹ لیتا ہے، لیکن اصل چیز تو یہ کہ جواہر لال نہرو اور جو ادھر شروع کے زمانے کے ان کے سیاستدان تھے، انہوں نے کہا کہ سائنس ہے، سائنس کے راستے سے اس ملک کو آگے بڑھنا ہے، اور جو ہماری جو پرانی روایات ہیں ہندو مت کی انہیں چھوڑو. کتنی بڑی بات ہے. انہوں نے کہا کہ اس زمانے میں ہمیں رہنا ہے، اس عہد میں رہنا ہے. وہ جو ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے ٹھیک ہے، اچھا کرتے تھے، لیکن ہمیں اس راستے پہ نہیں چلنا. That is why there is a huge difference. انڈیا نہ صرف چاند پہ پہنچا ہے، مریخ پہ بھی جا چکا ہے. ہمارا جو سپارکو ہے وہ انڈیا کے پروگرام سے پہلے شروع ہوا تھا. اسرو، انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن، بعد میں آیا. سپارکو پہلے آیا. آج سپارکو کا ہونا نہ ہونا ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہے. تو بس میں اپنی بات یہاں ختم کرتا ہوں تاکہ ہمارا آپس میں تبادلہ خیال ہو سکے. کچھ باتیں میں نے بڑی اشتعال انگیز کی، غصہ آیا، امید تو ہے کہ غصہ آیا ہو. لیکن دیکھیں یہ بنیادی باتیں، ان پیسہ خرچ کرنے سے کچھ نہیں بنا. آپ نے یہ دیکھا کہ 2002 میں جو HEC کا بجٹ تھا، HEC اسی وقت وجود میں آیا، اس سے پہلے یونیورسٹی گرانٹس کمیشن ہوتا تھا. لیکن 2002 اور 2010 کے بیچ میں جو یونیورسٹیز کا بجٹ تھا نا، وہ 12 گنا بڑھا، 1200%. لیکن کیا ہوا؟ کچھ ہوا نہیں. اس لیے کہ اٹس آل اے میٹر آف ایٹیٹیوڈ. آپ کس زاویے سے، کس نظر سے تعلیم کو دیکھتے ہیں، اس سے کیا مطلب دیکھتے ہیں. اوکے، تھینک یو. آپ اپنا ہاتھ کھڑا کریں گے اور اپنی باری پہ سوال کریں گے، خود سے نہیں بولنا شروع کر دینا. سر آپ نے اسکولنگ کی بات کی، تو جیسے ہمیں رٹو کوٹا ایک بنایا جاتا ہے، اور فارن میں اگر دیکھا جائے تو ہمیں پرابلم سالونگ کا بتایا جاتا ہے. میں ایک بایو کا اسٹوڈنٹ ہوں سر. اس کی وضاحت یہ ہے کہ ہم لوگ پڑھتے ہیں سائنٹفک پلاسٹیسٹی، کہ جو ہمارے جتنے بھی نیورونس بنتے ہیں وہ سر بچپن ہی میں بنتے ہیں، مطلب ایڈلٹ لائف میں نہیں بنتے. تو جو ریفلیکشن ہوتی ہے ہائر اسٹڈیز کی، وہ بھی اس
ऐसी क्या रेमेडीज आप बताएंगे कि हम अपने स्कूल लेवल पर जो है उनको अप्लाई करें और उनका जो है मजीद प्रोडक्टिव जो है रिजल्ट हम से अचीव कर सकते हैं? मैं तो सिर्फ ये अर्ज कर सकता हूँ कि जो बाकी दुनिया करती है, जिस तरह से वो अपने बच्चों को तालीम देती है, उसी तरह से हमें करना चाहिए। ये जो हमने उनके न्यूरॉन्स को बचपन ही में कम किया, उनको डरा धमका कर उनको मुर्गा बनाकर, तो इससे बच्चा जो है वो तालीम से, पढ़ने लिखने से मुतनफ़िर हो जाता है। वो कहता है कि इसमें क्या कोई खुशी तो है नहीं। ये बताएं कि कितने लोग इस मुल्क में खुशी से पढ़ते हैं और कितने मजबूरी के तहत पढ़ते हैं। आप ये जवाब हमारे सामने है। इसके बरक्स होना ये चाहिए कि बच्चा खुश हो, उसको पढ़ने से मज़ा आए। तरीका उसका ये हो सकता है कि भाई आप उसको एक तो कि बहुत जल्दी पढ़ाना सिखा दें और फिर उसको ऐसी किताबें दें जिसमें तस्वीरें बहुत सी हों, लिखाई कम हो। अब जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगा, उसको ज़्यादा उम्र के हिसाब से किताबें दें, बच्चों की किताबें वो, जिससे उसकी इमेजिनेशन बढ़े और फिर खुद से बच्चे पढ़ने लगते हैं। अब आप ये देखिए, किसी भी और मुल्क में आप जाएं, इंडिया में जाएं, मैंने खुद देखा कि आप बस में बैठते हैं तो इधर जो दूसरे मुसाफिर हैं, इधर उधर, बस हो, जहाज हो, ट्रेन हो, जहाँ भी, उन्हें किताब खोली हुई है, पढ़ते हैं। पढ़ने का शौक है, बचपन से ही उनको शौक दिलवाया जाता है। और वो इसलिए हो सकता है कि दे गेट स्टोरीज टू रीड। नहीं, कहानियाँ बड़ी दिलचस्प होती है। बच्चे को जब एंगेज करती है ना, तो फिर बच्चा खुद से वो पढ़ना चाहता है। बस आप इस रास्ते पे जब चल पड़ते हैं, फिर बस बाकी तो फिर हालात के ऊपर है। ये ऑन नहीं है। अब ऐसे ही बोल देते हैं। सर क्या मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम देखते हैं कि हर चीज़ को, इस इदारे को चलाने के लिए भी इसका भी एक सिस्टम है, मुल्क को चलाने के लिए भी एक सिस्टम है। तो जिस तरह आज हम देख रहे हैं कि दुनिया में सेल्फ लर्निंग का रुझान बढ़ रहा है, आपने भी इस चीज़ के ऊपर हमें अभी इनकरेज किया है, मगर आपको नहीं लगता है कि एज अ नेशन हमें ग्रो करने के लिए ये जो एजुकेशन सिस्टम है, इसको भी सिस्टमेटिकली अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, तो लोग आगे बढ़ेंगे और हम एज अ नेशन आगे ग्रो कर पाएंगे। जिस तरह हम हाल देखते हैं, आजकल ऑनलाइन अर्निंग का दौर है और बहुत ज़्यादा इस चीज़ को आपको फील किया जाता है कि आप फील्ड की तरफ जाओ, डिग्री को छोड़ दो और पैसे कमाओ, बट उसका एक नतीजा ये निकलता है कि आप खुद ही स्किल सीखते हो, खुद ही ऑनलाइन अर्निंग कर पाते हो, मगर आपकी ग्रोथ $1000 तक है, $2000 तक है, हर $5000 तक है, मगर आपको ये नहीं पता है कि आपने $1 मिलियन कंपनी कैसे बनानी है। अगर आप स्टार्टअप को भी देखो तो जो 40 स्टार्टअप पाकिस्तान में 2 से 3 साल पहले कामयाब हुए थे, उनमें से 38 to 39 स्टार्टअप के फाउंडर ऐसे थे जिन्होंने मल्टीनेशनल में काम किया हुआ था, बड़ी कंपनीज में काम किया हुआ था। अगर आज उन्होंने अगर पहले गूगल में काम ना किया होता तो वो यहाँ पर आके सक्सेसफुल स्टार्टअप ना बना पाते। तो आपको नहीं लगता कि हमें एजुकेशन सिस्टम को सिस्टमेटिकली चीज़ों को एज अ नेशनल लेवल पे पॉलिसी मेकिंग करके अपग्रेड करने की जरूरत है, ना कि हर बंदा अपने आप को करे। अगर आज मैं कोई अपना मेंटोर बनने लग जाऊँगा तो मैं गलत मेंटोर भी चूज करूँगा और मैं बहुत सारे लोगों के हाथों से दफा जाऊँगा, तो फिर सेक्शन नहीं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, कोई क्वालिटी इंश्योरेंस का सिस्टम नहीं। तो इसके ऊपर आप क्या कमेंट करेंगे? थैंक यू सो मच। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। देखें, ये मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि बस आप सिर्फ इतना सीखें कि आपका $1000 महीने का हो सके या 2000 का हो सके। एज एन एग्जाम्पल, जी बिल्कुल। और वो भी शायद ज़्यादा मुश्किल होता जाए जैसे जैसे वक्त गुजरे। आपको एक बड़ी बेस चाहिए, नॉलेज की बेस चाहिए। और ये एक हकीकत है कि कुछ फील्ड्स ऐसे हैं जिसमें एक यूनिवर्सिटी एजुकेशन की ज़रूरत हमेशा पड़ेगी। जैसा कि अगर आप डॉक्टर बनते हैं तो मैंने कार्डियोलॉजिस्ट की मिसाल ली, इसीलिए दी, या अगर आप एक
ऐसा फिजिसिस्ट बनना चाहते हैं जो ऊपर का ऊंचे लेवल का काम करे, कंडेंस मैटर में हो, जनरल रिलेटिविटी में हो, जो भी, तो आपको ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, 20 कोर्सेज तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, तो उधर तो कोई आपको रिलीफ नहीं मिल सकता। लेकिन बहुत से इंटरमीडिएट लेवल के काम हैं। मैं अब जैसा कि टूरिज्म है या होटल मैनेजमेंट है, जिसकी मिसाल मैं देखता हूँ, या चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, ये तमाम वो स्किल्स हैं, ये स्किल्स हैं जिनकी मार्केट में मांग है और जो आप सीख सकते हैं और आज जाकर किसी कंपनी में कह सकते हैं कि भाई मेरे पास ये स्किल्स हैं और मैं ऑनलाइन कर सकता हूँ या फिजिकली प्रेजेंट होके कर सकता हूँ। तो इस तरह से जो डाइवर्सिफिकेशन होगी वो बढ़ेगी। तो हर फील्ड के लिए ये मखसूस लेवल होता है। मैं तो समझता हूँ कि कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी ही नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप होटल मैनेजमेंट ले लें, यू कैन हैव अ PhD इन होटल मैनेजमेंट, लेकिन यहाँ पर एक्सपीरियंस काम करता है ना कि आपने, अच्छा देखिए होटल मैनेजमेंट कोई इतनी आसान चीज़ नहीं होती है, आपको बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना होता है, बट यू डोंट नीड अ PhD इन दैट। आपने कहीं जाकर कोई छोटा होटल चलाया या उससे पहले कुछ कहीं जाकर आप डेप्यूटी मैनेजर लग गए, तो दैट काउंट्स मोर देन गेटिंग अ डिप्लोमा और अ डिग्री। एक्सक्यूज मी सर। वो पीछे जी जी सर। तो आपसे 2 पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे ना सर। मुझे एक मैथमेटिकल फिजिसिस्ट बनना था शुरू से। तो सर मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जो हमारा सिस्टम है ये ज़ीरो पे नहीं है ना, कि आपको पुश ना करे या वापस पुल ना करे, ये नेगेटिव में है ना। ये इतने फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है कि अगर ये ज़ीरो पे आपको छोड़ दे फिर तो आप सेल्फ लर्निंग कर सकते हो ना। लेकिन ये अभी मैंने नोटिस किया यूनिवर्सिटी में जो हमें मैथमेटिक्स या फिज़िक्स जिस लेवल की पढ़ाई जाती है, तो सर ये नॉन कैलकुलस बेस्ड या नॉन मैथमेटिकल होती है और बिल्कुल स्लोली जा रही होती है, तो वो फील नहीं आ रहा होता वो साइंटिफिक ना। और हम इसको मतलब इंडिविजुअल लेवल पे किस तरह कैटर कर सकते हैं ताकि ये सिस्टम की फ्रिक्शन की वजह से मतलब हम मुतासर ना हो और टाइम इतना वेस्ट ना हो। भाई देखिए, आप सिस्टम को मुकम्मल तौर पे तो नहीं बदल सकते। कोशिश जरूर होनी चाहिए कि सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा एक इंटरनेशनल लेवल पर, नॉर्मल लेवल पर लाया जाए, मगर ये मानना पड़ेगा कि आप इस यूनिवर्सिटी के निज़ाम को पूरी तरह नहीं बदल सकते, शायद बहुत ज़्यादा असर भी ना डाल सके। तो फिर क्या किया जाए? और मैं समझता हूँ कि उसका वाहिद हल ये है कि आप सेल्फ लर्निंग करें। उसके बगैर कोई चारा है ही नहीं इस जमाने में। हाँ, जब आप और आप जैसे लोगों की कोशिशों से यूनिवर्सिटियां बदल जाएंगी, फिर ठीक है, एक आपको ज़्यादा एक ऐसा माहौल मिलेगा जहाँ आपको उतनी मुश्किल नहीं होगी और जहाँ आपको कुछ ना कुछ औरों को देखकर मिल सकता। बट राइट नाउ यू हैव टू चेंज, यू हैव टू फेंड फॉर योरसेल्फ, उसके सिवा कोई चारा नहीं। मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि हम कहते हैं कि हमारे एजुकेशनल स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाएं, इसमें सिंगल नेशनल करिकुलम को ले आएं, ये कर लें वो कर लें। बेसिक क्वेश्चन ये है सर कि हमने अभी तक अपना एजुकेशनल अपनी कोई पॉलिसी कोई स्ट्रक्चर खुद से तो बनाया ही नहीं। वो लॉर्ड मैकॉले अंग्रेज ने एक हमें बेसिक सा स्ट्रक्चर दी, एग्जामिनेशन सिस्टम है हमारे मुल्क में एग्जिस्ट करता है, ये किसने बनाया है? इसकी कोई वर्थ नहीं है ये जो हमने एक बनाया हुआ है। आप कहते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग करें, ये करें, स्टूडेंट्स को टाइम ही नहीं दिया जाता कि वो किस तरह, उसके पास टाइम नहीं है।
हमें ये टेंशन होती है कि सुबह हमारा मिड्स है और वो मिड हमने वो जैसे ही पेपर देते हैं हम उस सारे नोट को मारने की कोशिश होती है कि इसको अब हमने क्या करना है. दिस टाइप ऑफ एजुकेशन वी आर गेटिंग हियर इन पाकिस्तान. सो सर मकसद ये है कि हम लोग यूनिवर्सिटी मास्टर्स कर लेते हैं, उसके बाद कहते बाहर चले जाए. हमें इस की डिबेट होती है, मैं इमरान खान के साथ हूँ और मैं नून लीग के साथ हूँ. किसलिए इमरान खान के साथ वो मुझे भी नहीं पता होता, किसलिए नवाज शरीफ के साथ वो पता नहीं होता. तो वो एजुकेशन की बात नहीं है, क्योंकि हमें ये नहीं पता था कि हम पर्सनालिटी वो कल्ट का एक शिकार हुए हैं कि हमें इन सब चीज़ों से बाहर निकलना था. एजुकेशन की बेसिक पर्पस तो ये होता कि सबसे पहले हमारी ग्रूमिंग होती, हमारे ड्रेसिंग से लेके हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होते. इस्लाम का ओरिजिन क्या है, ह्यूमन का लाइफ का पर्पस के लिए हमारे कोई टीचर आके हमें ये नहीं बताता व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ लाइफ, आपका पर्पस क्या है लाइफ का. कभी किसी टीचर ने वो कहते हैं कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड देयर, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एवरी लेक्चर. ये आपने डाइस को देखना, सिर्फ यहाँ आपने ये प्रोजेक्ट को देखना है. तो हम कहते हैं स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट डिवेल्प करना इंस्टीट्यूशन की वो कंपल्शन होती है, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट नहीं होता. ये टीचर्स का इन पे कंपल्शन होनी चाहिए कि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट इन लोगों ने डिवेल्प करना है कि आप ये बुक है तो इसमें से मुझे बताएं कि सैपियंस पढ़ के कल आएँ और आके हमें बताएं कि इसमें क्या है. हम कहते हैं सैपियंस का ये चैप्टर है, ये चैप्टर स्टूडेंट्स की, तो वो स्किल्स को वहीं पे हमने रख कर जब बंद कर दिया कि उसमें किस तरह सोचना है. मकसद ये है सर कि जो इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट होगा उसको इकोनॉमिक्स का ही पता होगा, फिजिक्स का नहीं पता होगा, उसको लिटरेचर का नहीं पता होगा, उसको सूफीज़म का नहीं पता होगा, उसको इस्लाम का नहीं पता होगा. हमने एजुकेशन को ये कहा है टू बी गुड एट इकोनॉमिक्स, फिजिक्स एंड व्हाटएवर, उसको हम कहते हैं वो एजुकेशन है. दिस इज नॉट एक्चुअली एजुकेशन इन इट्स ट्रू स्पिरिट. हम एजुकेशन को जब तक कंपाइल नहीं करेंगे, एजुकेशन का मकसद ये है कि हाउ टू इंटरेक्ट विद टीचर्स. आप यहाँ पे आ रहे थे, हम एजुकेटेड और पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी है कायद आज़म यूनिवर्सिटी. यकीन माने कि हमारे अंदर बिहेवियरलिज्म नहीं है ना, हम हाउ टू बिहेव इन दिस टाइप ऑफ सेटिंग. हम लोग अभी भी बोल रहे हैं, शोर कर रहे हैं, हम आपको सुन नहीं रहे हैं. तो दिस इज द लैक ऑफ स्पिरिट ऑफ एजुकेशन. हमें सिखाया नहीं गया कि जब किस तरह की कोई लिटरेरी डिस्कशन होती है तो उसमें किस तरह बिहेव करना होता है. जब आप अटेंड हो रहा हो तब किस तरह बिहेव करना होता है, और जब इस तरह की कोई लिटरेरी डिस्कशन हो तो उसका बिहेव किस तरह करना होता है. ये हमें इदारे नहीं सिखाते. इकोनॉमिक्स को मैं काफ़ी अरसे से मैं चाहती हूँ कि यूनिवर्सिटी का कोई ऐसा अलायंस हो. आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, कोई टीचर्स कोई ऐसी वेव, फेमिनिज्म वेव दुनिया में स्टार्ट होती है, हम उसको भी बिगाड़ स्टार्ट के औरत मार्च बना दिए. कोई कहे तो किसी तरीके से पाकिस्तान से भी कोई ऐसी वेव निकलनी चाहिए. हमारे टीचर्स क्यों नहीं ये अपना कोई मुहिम क्यों नहीं बनाते, किसी के पास चले जाएं कि हमें अपने स्ट्रक्चर चेंजेस करने हैं ना. पॉलिटिशियंस को नहीं पता कि एजुकेशन में क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, स्टूडेंट्स को पता है. स्टूडेंट्स को पॉलिसी मेकिंग में क्यों नहीं लेके आते. बेसिक मेरा यही क्वेश्चन था कि इस चीज़ को पाकिस्तान बहुत सी बातें आपने की. कुछ बहुत अच्छी बात है और कुछ बिल्कुल गलत है. जो अच्छी बात लगी कि तालीम का मतलब वाज़ेह करना है. तालीम का मकसद है, मतलब है कि दिमाग की खिड़कियां खोलना, और इससे फिर हम एक दूसरे की बात सुन सकेंगे, समझ सकेंगे, उसका मुतबादिल शायद हम खुद पेश कर सकें. तो बहस और मकालमे के ज़रिए से हम अपने मसले हल करें. और जो आपने बात की कि स्टूडेंट्स का इसमें हिस्सा होना चाहिए, 100% दुरुस्त है. अब आप देखें कि इस यूनिवर्सिटी के साथ कितना जुल्म हुआ है. एक तो बीच में से सड़क बना दी, यूनिवर्सिटी को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, आप लोग खामोश रहे. फिर आज मैं बहुत दिनों के बाद इधर आ रहा हूँ, मैंने देखा कि हर तरफ खारदार तार और गेट जो होते थे, गेट भी बंद कर दिए. एक वक्त था जब ये यूनिवर्सिटी खुली थी, टोटली खुली थी. आते ही मैंने कहा कि इधर हुआ क्या है, किसके दिमाग में कोई खराबी पैदा हुई कि हर तरफ ये खारदार तार और ये दीवारें खड़ी की हैं.
This is against the spirit of the university, of a university. ये देखें, यूनिवर्सिटी वो जगह होती है जहाँ तबादला ख्याल होता है, जहाँ लोग इधर से उधर जा सकते हैं बिना किसी रुकावट के। तो अगर आपने डिपार्टमेंट्स के इर्द गिर्द ये दीवारें खड़ी कर दी और ना बिना वजह ये खारदार तारें डाल दी, तो यू आर स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ स्टूडेंट्स, स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। मुझे नहीं पता कि किसके दिमाग का फतूर था ये काम करना, लेकिन क्या आप लोगों ने कुछ आवाज उठाई इस पे? अगर नहीं उठाई तो मेरा आपका कसूर, फिर भुगते आने वाली नस्लें भी इसकी ये भुगतेंगी। इतनी खूबसूरत यूनिवर्सिटी ये होती थी 50 साल पहले, और आज इसकी शक्ल ही बिगड़ी हुई है। अच्छा, तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, स्टूडेंट्स को हिस्सेदार होना चाहिए यूनिवर्सिटी के मामलात में। स्टूडेंट यूनियन बहाल होने चाहिए, उससे कोई क़यामत नहीं आएगी। थोड़े से लड़ाई झगड़े होंगे, कोई बात नहीं, वो 70s में यहाँ यूनियन होते थे, हाँ झगड़े शगड़े कभी कभी हो जाते थे, कोई बात नहीं, वो तो होता, मगर कोई तबादला ख्याल तो होता था। अब तो कुछ भी नहीं, अब तो डंडे उठाते हैं और एक दूसरे को कूट के मारते हैं, और वो इसलिए कि कोई आउटलेट ही नहीं है। जो बात आपकी गलत लगी वो मैं बता दें, आपने कहा कि हमारे टीचर्स को चाहिए कि वो बताएं कि मकसद हयात क्या है। मैंने को खुद नहीं पता, ना मुझे ये तो हर शख्स अपने लिए तय करता है। जो दूसरी गलत बात आपने की, आपने सारा मलबा जो इस वक्त है ना वो लॉर्ड मैकॉले पे डाला। अब मैं आपको बताऊं कि लॉर्ड मैकॉले ने क्या किया और जो हमने नहीं किया उसके कितने भयानक नतायज बरामद हुए। तो ये 1835 की बात है। लॉर्ड मैकॉले पहुंचा बड़े सगीर में और उसने कहा कि यहाँ जो रिवायती तालीम है, हिंदुओं में पाठशाले और गुरुकुल होते थे, हमारे मदरसे और मकतब होते थे, तो उसने कहा कि अब हम जो रिवायती तालीम है उसको रुपया नहीं दिया करेंगे, देंगे तो सिर्फ इस शर्त पे कि वो साइंस पढ़ाएं और अंग्रेजी पढ़ाएं और जो जदीद उलूम है उससे रोशनास कराएं अपने स्टूडेंट्स को। तो इन्होंने कुछ थोड़ी सी मुखालफत की शुरू में, फिर कहा कि ठीक है, आ गई हमें स्कूल दो, हमें कॉलेज दो, हमें यूनिवर्सिटी दो, हमें साइंस पढ़ो, हमें वो तरीके सीखने हैं जो तुम्हारे हैं, अंग्रेज के हैं। और हमने क्या किया, हमारे उलेमा ने क्या किया, 8,500 8,400 उलेमा ने एक पिटीशन लिखी, अर्जी लिखी कि हमें तुम्हारी तालीम की कोई ज़रूरत नहीं, कोई साइंस हमें नहीं चाहिए, हमारे पास जो किताब है वो काफ़ी है, जाओ अपने पैसे लेकर भागो। क्या हुआ उसके नतीजे कि हिंदू आगे निकलता गया, मुसलमान उधर ही रह गया। बाद में अब हम थोड़ा सा कैचअप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस ज़माने में अगर हम ये बात मान लेते ना तो आज वो फर्क ना होता हिंदू और मुस्लिम में, जो कि इस वक्त बिल्कुल वाज़े होकर सामने आया। आप देखें अमेरिका में सारे जो बड़े प्रोफेसर हैं, सारे देखें 30% जो बड़े प्रोफेसर वो इंडियंस हैं। मुसलमान आपको 1% दिखाई देता, पाकिस्तानी 0% है। क्यों? इसलिए कि हमने इतनी देर की इस तक आने में, हमने कहा कि हमें चाहिए ही नहीं। So don't blame Macaulay, blame us instead. अच्छा आगे चलिए। एक सेकंड, आप प्लीज ब्रीफ रहिएगा, सवाल तकलीफ नहीं करनी, सवाल करना। जी Hi sir, my question is how to ask the right question. Am I audible? Hi sir, my question is how to ask the right question.
ask the right question. Okay, when you focus on the right issues, then the question will come right. फुरकान जू जब आप सवाल करने लगे लेकिन शायद आप दोबारा नहीं देगा, दोबारा नहीं देगा. But जिस पर उन्होंने सवाल कम और तफसील ज़्यादा दी थी, so I get bit confused कि questions are very short, not the answers are long, you know. So मुझे confusion थी कि question और right question से basically फर्क क्या होता है? देखिए, रेलेवेंट क्वेश्चन और इररेलेवेंट, मुताल्लिका सवाल और गैर मुताल्लिका, ये हमें तय करना है. तो ये जो भी मौजूद है उसके हिसाब से ही तय हो सकता है. And the second question, what are the HEC standards for a student to get admission in university? AGC से पूछना होगा. सर HEC का रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं है. AGC अगर ना भी हो तो भी कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा इस मुल्क की यूनिवर्सिटियों के ऊपर. और मैं समझता हूँ कि अगर वज़ारत तालीम को इस वक्त बंद कर दिया जाए तो बहुत बेहतर होगा. पहले तो मैं आपकी बात में ऐड करना चाहूँगा कि यार ब्रीफ रखना है सवाल. कहाँ है आप? प्लीज. अच्छा, सर ये जो आपने बात की कि हमारी यूनिवर्सिटी की दीवारों पर खारदार तारीख की तरह से यूनिवर्सिटी की दीवारों पे नहीं है, हमारे दिमागों पर है. ठीक है. और सेकेंडली मेरा क्वेश्चन ये है कि क्रिटिकल थिंकिंग पे जो सबसे बड़ा सवालिया निशान और सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो एक रिस्पेक्ट कल्चर की आई थिंक आता है कि हमने उस असाज़ा की बहुत रिस्पेक्ट करनी है और रिस्पेक्ट द अथॉरिटी. ठीक है. इसका नुकसान ये होता है कि हम चैलेंज द अथॉरिटी कभी भी नहीं करते और इसका अल्टीमेट नतीजा ये होता है ओवर द कोर्स ऑफ ईयर्स हम इंटेलेक्चुअल रिबेलियन बिल्कुल भी नहीं कर पाते. तो इसका एक 20 साल की जवान के लिए क्या हाल है? ये जो आपने बात की ना, रिस्पेक्ट द टीचर, इसी ने हमारा बेड़ा गर्क किया. मैंने 50 साल पढ़ाया है और 50 साल की मुझे तनख्वाह मिली है. आप क्यों मुझे रिस्पेक्ट करेंगे? मैं तो तनख्वाहदार हूँ. जिस तरह चौकीदार है उसको तनख्वाह मिलती है, उसके अवज़ वो काम करता है, इसी तरह मैंने भी वैसे ही अपनी ज़िंदगी गुजारी. मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे जो दोस्त हैं यहाँ पे और जो प्रोफेसर हैं बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन क्योंकि हमारी दोस्ती है तो इसलिए उन्होंने बख्श दिया मुझे. बट दे डोंट रियली डिजर्व रिस्पेक्ट. Deserve respect either. I don't deserve respect just because I've been a teacher or am a teacher. No, I don't deserve respect for that. Of course, every person should be respected, but I don't deserve extra respect for that. भाई, अगर मैं ये मुफ्त कर रहा होता तो फिर तो बात और होती, लेकिन मुझे तनख्वाह मिलती रही है, इससे मैंने अपना घर चलाया, गाड़ी ली, सब कुछ. Why should I be? आप क्यों सर झुकाए मेरे सामने इसलिए कि मैं पढ़ाता रहा? कोई जरूरत नहीं. अच्छा, बहुत इसमें खराबी है. मैं आपको बताता हूँ क्यों. हमारे यहाँ टीचर की दहशत होती है. हमें ये बचपन से बताया जाता है कि तुम्हारा उस्ताद तुम्हारे बाप की तरह है और बाप तो होते ही हैं जालिम, उनके सामने आप नहीं बोल सकते. लिहाजा होता यह है कि क्लास में अगर कोई स्टूडेंट सवाल करे तो टीचर उसे चुप करा देता और स्टूडेंट की जरूरत ही नहीं बनती कि वो फिर मुंह खोले उसके बाद. ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए. इसलिए कि एक दोस्ताना रवैया होना चाहिए टीचर का स्टूडेंट्स के साथ. इनके बीच में जो एक रब्त बनता है वो तभी बन सकता है अगर दोनों बराबरी की सतह पे है. मैं अपना एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ. मैं 19 साल का था जब मैं अमेरिका गया और क्लास में हर जो प्रोफेसर होते थे, बाद में अगर मेरा कोई सवाल होता था तो मैं उनको सर कहता था. वो बड़े हंसते हैं
एक ने कहा बट आई हैव नॉट बीन नाइटेड, व्हाई आर यू कॉलिंग मी सर? मैंने कहा कि बट आई, तो मैंने कहा व्हाट शुड आई कॉल यू? कॉल मी जॉन या रॉबर्ट या जो भी। तो मेरे मुंह से ना निकले, क्योंकि मैं एक दूसरे कल्चर से आया हुआ था, तो आई कुड नॉट से हे जॉन कैन यू एक्सप्लेन दिस टू मी। शुरू में मैं नहीं कर सकता था, लेकिन क्योंकि मैं बहुत साल रहा, पहले अंडर ग्रेजुएट किया, फिर PhD की, तो फिर आदत लग गई। यहाँ पर के अच्छा, मैं काशिफ आपने सुना होगा, मंसूर आपने सुना होगा, विक्टर वाइस्कॉफ। विक्टर वाइस्कॉफ was the director of CERN, professor at MIT, बहुत ही बड़े फिजिसिस्ट। तो हर एक उसको विकी कहता है। अब मेरे मुंह से विकी शुरू में नहीं निकला, बट देन आई गॉट यूज्ड टू इट। और फिर जब बात होती थी तो देन आई कुड रिलेट टू इट, फिर मजा आता था उसकी कंपनी में। तो ये बात है कि ये जो खामखा हमने अपने आप को इतना ऊपर किया हुआ है, वो गैर जरूरी है और नुकसान